heat change in a reaction? The amount of heat, the amount of energy basically involved in a reaction is known as enthalpy change or a heat change. The system having a heat content, system having an energy in it, that heat content, that energy in a system is called as enthalpy of the system, and the change or the reaction that is happening with the change in that amount of energy is called as enthalpy change, which is measured in kilojoules, or joules, and it is represented as delta H. I'm talking about enthalpy. The amount of energy, the amount of heat involved in a reaction is called heat change or enthalpy change. I said the enthalpy change is basically the amount of heat content present in a system. Is it clear? Yes, miss. Okay. As I said, the enthalpy change is represented as delta H. Delta H. If the delta H is represented with a negative sign, that means the reaction is exothermic. The reaction is Exothermic. exothermic. If the delta H is represented with the positive sign or with no sign, if there is no sign, that means there is a positive. So the reaction is endothermic. Endothermic. Because in an endothermic reaction, the heat is added, the heat is absorbed. And in an exothermic reaction, the heat is lost. Is it clear? Yes, miss. Okay. Let's see these two reactions. When 1 mole of carbon is burned in excess of oxygen, 349 kilojoules of heat is produced. 349 kilojoule of heat is produced. Produced means the heat is in a product, the heat is released. So this amount of energy will be represented with a negative sign. That means this reaction is Exothermic. exothermic. Pushbak, Ayan, is it clear? The reaction is exothermic because this is the amount of energy or a heat that is produced. Now you have to make it clear that this amount of heat will be represented with a negative sign or a positive sign. I am representing it with the negative sign because this amount of energy is produced, is released, is liberated when carbon is burned in the presence of oxygen and producing carbon dioxide. This is a combustion reaction. Next example, when 1 mole of hydrogen, when 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of iodine, 52 kilojoule of heat, 52 kilojoule of heat is absorbed. So in a process, in a reaction, they are saying that 52 kilojoule of energy is absorbed from the surrounding. This is an example of Endothermic reaction. endothermic reaction because this amount of energy is absorbed, is entered. Keep it, remember, keep it, learn with this that endo means enter or exo means exit. So in an endothermic reaction, this amount of energy, this amount of heat is absorbed, this amount of energy is
entered, this amount of energy is taken in by the reaction medium. So that's why I will write this delta H with positive sign. This positive sign is showing that the reaction is endothermic. Is it clear? Yes, miss. Okay. Yes, Next, miss. this is about the enthalpy change. We will do the problems of the enthalpy change when we will discuss making and breaking of a bond. So now we are going to discuss about the energy level diagram for exothermic and endothermic reaction. Energy level diagram. There are two types of diagrams. The one is energy level diagram and the other one is energy profile. Energy level diagram and other one is energy profile. Yes, Can you बेटा. please repeat? ये वाला मुझे समझ नहीं आया ये पोर्शन. चैप्टर में दो तरह की डायग्राम्स देखेंगे. एक आप देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और एक आप देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम. जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है, लाइक दिस. इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं. वी विल डिस्कस दिस लेटर. Today I am going to tell you about the energy level diagram. In a energy level diagram, enthalpy, we will show enthalpy change. Is it clear? Yes, miss. Okay. So in the energy profile diagram, we are also showing the enthalpy change, but there is also another energy, that is activation energy in a energy profile diagram. लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम में आपने एक्टिवेशन एनर्जी को शो नहीं करना, आपने जस्ट एंथैल्पी चेंज की बात करनी है. सो एनर्जी लेवल डायग्राम इज द सिंपलेस्ट वन, और जो आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस उसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर रहे हैं. और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए कि ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, दिस वन. ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. और अगर पेपर में मेंशन हो कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें, तो आपने, मैं आपको नेक्स्ट जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी इस टाइप की स्लोप वाली, इस तरह की माउंटेन टाइप डायग्राम बनेगी. इज इट क्लियर? Yes, miss. ओके. सो आगे चलते हैं. Let's talk about energy level diagram for exothermic and endothermic reaction. Basically, this is a convenient way to show a reaction. To draw an energy level diagram, it's just a convenient way to show that how energy change takes place in a reaction. Let's discuss. For example, this is energy level. Energy level is increasing upward. So if I'm talking about exothermic reaction, you have to tell me that what is the energy of reactants in start. If the reaction is exothermic, you have to tell me that what is the energy of reactants in start. Bosphera, what do you think? Zimal, what do you think if the reaction is exothermic, then what is the energy of reactants in start?
start it's room temperature and then it increases. Yes, in a start, the energy of the reactants will be more. That's why the reactants are releasing energy. If the reactants having less energy, then why they will release the energy? Miss, can you repeat the question? Question is, what is the energy of the reactants in an exothermic reaction? Is it high or low? So the energy of the reactants in a start is high in an exothermic reaction. Exothermic reaction is a reaction in which energy is released. So reactants having high energy in start in exothermic reaction. Exothermic reaction. Because the reactants are releasing energy in exothermic reaction. इसलिए एनर्जी रिलीज करेंगे कि उनके पास एनर्जी ज्यादा है. So that's why reactants की स्टार्ट में एनर्जी ज्यादा होती है. So that's why they are going to release energy. और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी? आपने एनर्जी प्रोफाइल में ड्रॉ करना है कि प्रोडक्ट्स हैविंग लेस एनर्जी. सिंपली आपने रिएक्टेंट्स ऊपर लिखने हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और प्रोडक्ट्स नीचे लिखने हैं. आयान, मेरी बात समझ आ रही है? मिस ये वाली बात दोबारा बता दे. प्रोडक्ट्स लिखने हैं और ऊपर क्या लिखना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. वी नो दिस. एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी है. रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी है तभी वो रिलीज करेंगे. तो रिएक्टेंट्स की लाइन आपने ऊपर बनानी है और प्रोडक्ट्स की लाइन आपने नीचे बनानी है. अब क्लियर है? यस मिस. तो आप इसे कह लीजिए कि ये डेल्टा दिस इज H1. H इज एंथैल्पी. सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स और ये कह लीजिए आप H2 है. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. पहली एंथैल्पी H1 थी. सेकेंड एंथैल्पी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज द H2. रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी H1 होती है और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी H2 होती है. H1 मतलब इनिशियल और H2 मतलब फाइनल. H1 इनिशियल को शो करता है और H2 फाइनल को शो करता है. तो इनिशियल एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की H1 थी, जब प्रोडक्ट्स बने तो फाइनल एंथैल्पी उस रिएक्शन की H2 होगी. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स को ऊपर लिखते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी ज्यादा है. दैट्स व्हाई दे आर रिलीजिंग एनर्जी एंड मेकिंग प्रोडक्ट. तो आपने रिएक्टेंट्स ऊपर लिखे, प्रोडक्ट्स नीचे लिखे और उसके बाद आप कुछ इस तरह डाउनवर्ड एरो शो कर देंगे लाइक दिस कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी रिलीज हुई है और प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए. और आप मेंशन कर देंगे दैट हीट ऑफ रिएक्शन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H. डेल्टा H इज बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है क्योंकि हीट रिलीज होती है. मिस अब ये डेल्टा H कैसे होगा? डेल्टा H नेगेटिव कैसे होगा? सो लेट्स सी. डेल्टा H is equals to H2 minus H1. H2 is product and H1 is reactants. So H2 आप नोट कर रहे हैं. अगर मैं कहूं कि ये 5 है, एनर्जी यहाँ पर 5 किलो जूल्स पर मोल है और यहाँ 15 थी, तो मैं कह रही हूँ कि H2 5 किलो जूल है फॉर एग्जांपल और H1 है 15. तो 5 माइनस 15 कितना आएगा आंसर? -10. -10. सो आपका आंसर डेल्टा H माइनस आ गया. डेल्टा H माइनस आ गया. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H माइनस होता है. इज इट क्लियर? यस मिस. अब सबको क्लियर है कि ये डेल्टा H एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माइनस नेगेटिव कैसे हो जाता है?
Aman, Ayan, Pushpat, Musfira, Muskan, Jimal, is it clear? Yes, Ji, miss. Yes, miss. Yes, Yes, miss. So This -10. -10 ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। यहाँ पर वैल्यूज तो कुछ और हो सकती हैं आपको समझाने के लिए कि H1 ज्यादा है और H2 कम है। तो H2 में से कम वैल्यू में से H1 जो ज्यादा वैल्यू है, अगर कम वैल्यू में से मैं मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा वैल्यू माइनस करूंगी तो आंसर मेरा माइनस के साथ आएगा। ऐसा ही होता है मैथ्स में yes, miss. ऐसा ही होता है. जी। तो दैट्स व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। Let's talk about endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? जी, what will happen in endothermic reaction? मैं अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल बना यानी कि एनर्जी लेवल की डायग्राम बनाना चाहती हूँ, ड्रॉ करना चाहती हूँ एनर्जी लेवल। तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ? जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम मिस, तो वो नीचे आएंगी लाइन उसकी। यस, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के पास इतनी कम एनर्जी है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर सकते। दे नीड एनर्जी टू एब्जॉर्ब एंड डू अ केमिकल रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे। इट मींस कि रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी कम है, दे हैविंग लेस एंथैल्पी। सो ये आपकी हो जाएगी H1 क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। आपने यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनानी है। बिल्कुल आपने इस लाइन के साथ रिएक्टेंट्स की लाइन बनानी होती है, प्रोडक्ट्स की थोड़ा सा साइड पे बनानी होती है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक एरो शो करते हैं कि आपकी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा हो रही है। यहाँ आपने प्रोडक्ट्स शो करने होंगे। एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। प्रोडक्ट्स डेल्टा H क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा H विल बी हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं डेल्टा H को, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अब मुझे कौन एक्सप्लेन कर रहा है ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? ये प्रोडक्ट की जो है मिस पॉजिटिव जी, पॉजिटिव कैसे होगा? बिकॉज ये रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट की मतलब वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा H बेसिकली इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। तो H2 अब ज्यादा है, अगर मैं इसे 15 कह दूं, ये H2 15 है और H1 5 है, ठीक है। तो मैंने अब H2 में से H1 माइनस करना है, तो मैंने 15 माइनस 5 किलो जूल्स करना है। 15 माइनस 5 किलो जूल एनर्जी को मैंने माइनस करना है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? यस सबको समझ आ रहा है कि एंडो रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के साथ क्यों शो होता है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब आप ये अपनी बुक में एक एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल मैं स्क्रीन शो नहीं कर रही, आप लोग ये मुझे खुद कीजिए। जी, ये आप लोग खुद सॉल्व करें अभी, ठीक है। क्वेश्चन इज when 1 mole of hydrochloric acid reacts, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, with 1 mole of sodium hydroxide. 1 mole hydrochloric acid is react with 1 mole of sodium hydroxide.
57.3 kilojoules of heat is produced. I am saying of 57.3 kilojoule of heat is produced. Draw an energy level diagram. Draw कीजिए सब, जल्दी से ड्रॉ करें और मुझे 1 सेकंड में व्हाट्सएप कर दीजिए। जल्दी से कॉपी पे ड्रॉ करें और 1 मिनट में मुझे व्हाट्सएप करें। जल्दी से रफ से ड्रॉ करें किसी रफ कॉपी पे और मुझे व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप देखती हूँ आप लोग का। जो O1 का ग्रुप है उसमें कर दीजिए, जो हमारा केमिस्ट्री का ग्रुप है। ग्राफ ड्रॉ करके वो ये लिखना भी HCl वगैरह। जी बेटा, ये अपने रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपने मेंशन करना है। आपको पता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज, तो आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं। अब आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिखना, बल्कि आपने HCl NaOH ये मेंशन करना है। जल्दी कीजिए। डू इट क्विकली। मैं व्हाट्सएप का आप लोगों की वेट कर रही हूँ। 1 मिनट लगेगा इसकी डायग्राम बनाने में। अयान जल्दी कीजिए, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए। 1 सेकंड की बात है बेटा। ये प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जल्दी बताइए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह ये लिखना ना कि इनमें फिर रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं। जी डू इट क्विकली जिमल, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। मुस्फिरा, मुस्कान, खुशबक, आर यू डूइंग? यस मिस। खुशबक जल्दी कीजिए। अयान जल्दी से मुझे शेयर करें। मिस ये जो लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड के आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 मोल। कॉपी वर्क में आपने एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लिखनी है, यूनिट की हेडिंग देकर इसका यूनिट लिखना है और सिंबल की हेडिंग देके इसका डेल्टा एच सिंबल लिखना है। डेल्टा एच में बेसिकली एक ग्रीक, डेल्टा ना एक ग्रीक वर्ड है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये आपको पता होना चाहिए। सो आपने मेंशन करने के बाद 2 रिएक्शंस जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे वो मेंशन कर देने हैं और उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की विद एक्सप्लेनेशन। एंडो और एक्सो दोनों की एनर्जी लेवल डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन भी आपकी कॉपी पे होगा आज का। इज इट क्लियर? ओके मिस ये हमने ग्रुप में सेंड करना है? जी ग्रुप में कर दीजिए, जल्दी से कीजिए। मैं देख रही हूँ, जल्दी करें। क्या आप लोगों ने ड्रॉ किए मुझे देखने दीजिए। ओके जल्दी, मैंने बताना है, मीटिंग एंड हो जाएगी अगर आप लोग इतना लेट करेंगे। Do it quickly.
मुस्कान की आ गई है, मुस्कान नहीं, एरो ही नहीं बनाया आपने, अंडरलाइन भी नहीं किया और एरो नहीं बनाया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहे हैं, कुछ शो नहीं किया, H2 H1 शो नहीं किया और डेल्टा Okay, H क्या है वो भी शो नहीं किया। इम्प्रॉपर 0 नंबर अगर आप अपने कैम्ब्रिज के पेपर में ये ड्रॉ करेंगे बेटा, जल्द दोबारा से कीजिए, बाकी सब जल्दी कीजिए, आई एम वेटिंग। गलत करें चाहे सही करें लेकिन कीजिए शेयर मुझे। जिमल मिस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि HCl रिएक्टेंट होगा या NaOH रिएक्टेंट होगा, ये हमें कैसे पता HCl चलेगा? दोनों रिएक्टेंट हैं। ओ अच्छा, HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दिस बोथ ऑफ देम आर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, इसका प्रोडक्ट बनाइए। ओके मिस। पुष्पक कर रहे हैं बेटा आप? नीचे अयान शेयर कीजिए। समझ आने का मतलब है कि आप कर सकते हैं, तो अगर आप समझ आ गया तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे आंसर शेयर कीजिए। अगर नहीं आपसे हो रहा दैट मीन्स आपको समझ ही नहीं आया। मिस हम वैल्यूज कौन सी यूज करें माइनस करते हुए? बेटा लिखी हुई क्वेश्चन में 57.3 किलो जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। 57.3 ओके। में वो जो हमने लाइन एरो बनाना है रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट तक, वो फिर एक एरो बना दें। जी एक एरो बना दीजिए, एक एरो बना दीजिए, एक लाइन बनाए पूरी और एरो हेड बना दीजिए उसका। मुस्फिरा हो गया बेटा? अयान, इमन, मिस बेटा चाहे गलत करें चाहे कुछ भी ड्रॉ करें, मुझे शेयर कीजिए कि आपने किया क्या है, आपको समझ कितना आया है, शेयर कीजिए मुझे। जो भी आपसे हुआ है आप मुझे शेयर करें। अयान क्या कर रहे हैं बेटा आप? इसको 10 मिनट के में ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन आपने 30 सेकंड्स में करना है। आपके पेपर में इतना टाइम नहीं होता, इतने शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक आपकी 30 वॉइस मिनट। नहीं आ रही बेटा जल्दी कीजिए। मिस मैंने आपको सेंड जी। किया है, लेकिन मुझे समझ माइनस वाला समझ नहीं आ रही कि किसको कैसे माइनस करना है किसमें से। बेटा किसी चीज को भी माइनस नहीं करना, आपको एक पूरी वैल्यू दे दी है, डेल्टा एच लिखकर पूरी वैल्यू लिख दीजिए माइनस या प्लस के साथ। ओ वेल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपको एक बात क्लियरली समझाने के बाद समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल खुशबख्त आपने गलत किया है। मुझे लग रहा है खुशबख्त आप क्लास नहीं ले रही,
आपने एक्टिवेशन एनर्जी का वर्ड क्यों यूज किया? हम एक्टिवेशन एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहे आज। वेल लुक एट हियर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या करना है। यहाँ देखिए सब, दैट्स वेरी बैड। आपसे कहा गया कि हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस का मतलब है कि हीट रिलीज हुई है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। प्रोड्यूस की टर्म यूज है, इसका मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच इज -57.3 किलो जूल। इसमें और कोई बात समझने वाली नहीं। आपने यहाँ एनर्जी लेवल लिखना है और नीचे आपने टाइम का स्लॉट बनाना होता है कि ये टाइम को शो कर रहा है नीचे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप जानते हैं रिएक्टेंट ऊपर लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स नीचे लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट है आपका HCl और NaOH। HCl भी एक्वस स्टेट में यूज होता है और NaOH भी एक्वस स्टेट में यूज होता है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने दोनों को एक्वस एक्वस मेंशन कर दिया। आपने एरो बनाना होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर आप एरो का हेड गलत बना देंगे तो दैट नीचे से ऊपर बना देंगे तो इसका मतलब है कि आपके सॉल्ट और वाटर से HCl और NaOH बन रहा है, तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। दिस इज del H1 और ये जो प्रोडक्ट है दिस इज H2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट है सॉल्ट और वाटर। HCl और NaOH का रिएक्शन करवाएं और जरा मुझे बताएं कि सॉल्ट और वाटर कौन सा सॉल्ट बनेगा।